Fat gain again. Why? Friends, there is something common between you and me, that we all try to achieve our fitness in our way. We always try to achieve, we always try to lose our weight, but at times we achieve it, but again our weight come back. If you are among them, then definitely this video is going to help you out, because I will be covering up the topic that why again and again your fat is coming back into your life. Health, happiness, immunity, and to have great body. This is my goal for every client, for everybody. This is how legends are made. Hi, my name is Bhupendra and I'm an online fitness coach. I'm a lifestyle expert and I'm on the mission to transform 100,000 working class 30 plus age people of India into happy, healthy, immune and to have a great body. That's why I have created this video. Friends, researches has been conducted and they have find out very amazing result that 95% diets fail. फ्रेंड्स, कोई ना कोई डाइट ऐसी होती है कि या तो वो महीने भर में फेल हो जाए, 15 दिन में फेल हो जाती है, 3 महीने में फेल हो जाती है या साल भर में फेल हो जाती है। बहुत अच्छा एग्जांपल है आपकी एक फेल डाइट का, यहाँ तो किसी फेस्टिवल्स के ऊपर या फिर किसी न्यू ईयर के ऊपर आप अपने रेवोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सिंपली तौर पे द 95% डाइट फेल्स. Most of the people, around 80% of the people who lose their weight while eating less food, they attain back after 3 years into their life, specifically if they are 30 plus age. So what is the reason of all these things? Why our fat is coming back into our life? Because of these 3 things. Friends, the number one reason is your mindset. Friends, कई लोगों को सोच के बड़ी हैरानी होगी कि जब भी कभी हम कोई वेट लॉस करना चाहते हैं तो उस वक्त पे ओनली वी थिंक अबाउट दैट नाउ वी नीड टू डू डाइटिंग एंड वर्कआउट, बट नो वन टॉक्स अबाउट द माइंडसेट. सिंपली तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान के चलिए किसी व्यक्ति को हमने स्मोकिंग छुड़ा कर रखी है, वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहा मगर वो स्मोकिंग जो है वो नहीं करा उसने 1 महीने तक. फिर जैसे ही वो हॉस्पिटल से छूटता है वैसे ही वो सीधे एक सिगरेट की दुकान पे जाके सिगरेट खरीदता है. ऐसा ही कुछ हाल होता है वेट लॉस डाइट्स का भी. Whenever a person who tries to achieve their fitness while eating less food, on that time they break their diet whenever any festival comes, because still they are not understanding this thing that those food which seems tasty to them but they are not healthy. फॉर एग्जाम्पल, एक पिज्ज़ा खा के हमको लगता है कि शायद ये बहुत टेस्टी चीज़ है और ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सच बात तो ये है कि वो आपकी सेहत को वैसे ही नुकसान पहुंचाता है जैसे एक सिगरेट पहुंचाती है. सिंपली तौर पे when you start changing your mindset, on that time you're gonna feel this thing that what food after having them, what kind of a feelings you get after eating those food. अगर मैं एक अच्छा खाना खाता हूँ तो हो सकता है कि स्वाद में मुझे उस वक्त में ठीक लगे वो, मगर मुझे उसके बाद में बहुत अच्छी फीलिंग आती है. बट जब भी कभी मैंने होटल्स का या पिज्ज़ाज या कोई भी जंक फूड खाता हूँ उसको खाने के बाद फीलिंग अच्छी नहीं आती है, आधे घंटे के बाद ही. सिंपली तौर पे यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंडसेट. बहुत से लोग जो ऐसे होते हैं जो पतले होने के लिए किसी भी हद पर जाने के लिए रेडी होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो सूप पर आ जाए, बहुत खाना कम कर देते हैं जबकि भूखे रहते हैं. अगेन योर माइंडसेट नीड्स ओवर हियर. द सिंपल थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस कि आपको 30-35 साल लग गए हैं इतना मोटा होने में, अपने शरीर को इतना नुकसान पहुंचाने के अंदर, और आप अभी अपने आप को 30-35 दिन भी देने के लिए रेडी नहीं हो. Isn't it is amazing? Simply तौर पे you need to work on your mindset. You need to find out some answers of some question that what is the meaning of fitness for you. Whatever you are doing, is it a sustainable lifestyle? Whatever kind of a fitness, is it improving your personality? और fitness क्या है आपके लिए? जब आपको ये सवालों के जवाब मिल जाएंगे, on that time you gonna find out that your fitness in your hand. Because जो भी कोई व्यक्ति अपने वेट को अपने कम करके परमानेंट फिटनेस में जी रहा होता है वो भूखा नहीं रहता है. as simple as that. Friends, the number 2 reason of why your fat is coming back into your life, because you are not consuming a good quantity of nutrition. सिंपली तौर पे अगर मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात बताऊं तो हमारी बॉडी को 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है: कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स.
जिसके अंदर से हमारी बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं बनाती है और तकरीबन 9 तरीके के प्रोटीन्स नहीं बनाती है हमारी बॉडी, जिसके लिए वो प्रोटीन्स हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। पर बहुत सारे लोग, खास तौर पे वेजिटेरियन लोग, इस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो बहुत गलत तरीके से नॉन वेज को खाते हैं, जो उनको फ़ायदा पहुंचाने की जगह पे उस चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा होता है। सिंपली तौर पे अगर आपको अपने न्यूट्रिशन को लेना है तो आपकी ज़रूरत है प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, जो कि आपको कंज्यूम करना ही करना चाहिए। आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। आपकी एक प्लेट के अंदर एक पोर्शन प्रोटीन का, एक पोर्शन फाइबर सलाद का, एक पोर्शन आपके ग्रेन्स का और एक पोर्शन आपका सीजनेबल वेजिटेबल्स का होना ही होना चाहिए। इस तरह के खाने को करके अगर आप पतले होते हैं, देन यू आर नॉट फीलिंग हंग्री, यू आर हैवी कंज्यूमिंग ए न्यूट्रिशियस फूड एंड योर वेट लॉस इज सस्टेनेबल। प्रोटीन खाने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है, बिकॉज प्रोटीन को पचाने के अंदर भी बॉडी की एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है। इसलिए अगर हम 100% प्रोटीन खाते हैं तो हमको सिर्फ 70% ही बॉडी में जाता है, 30% उसको डाइजेस्ट करने में लग जाता है। और सिंपली तौर पे मोटापे को कम करने का सिर्फ एक ही राज है, कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। लेकिन जब कैलोरी बॉडी में आ ही नहीं रही है तो आउट करने की जरूरत क्या? दैट्स व्हाई प्रोटीन इज द गेम चेंजर। उसी तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बॉडी को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बॉडी को फैट से एनर्जी लेना शुरू करना चाहिए। हमारी बॉडी में अगर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है तो फैट का एनर्जी यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, जो कि पुअर कोलेस्ट्रॉल से नहीं बढ़ता है। ऑलराइट, तो सिंपली तौर पे यू नीड टू फोकस ऑन ए डिस्ट्रिक्ट, आपका फोकस अभी भी आपके न्यूट्रिशन पे ही होना चाहिए। अगर आपका फैट बार बार बढ़ रहा है और बार बार आप सिर्फ सूप पी के अपने वेट को कम कर रहे हैं या फिर व्रत करके अपने वेट को कम कर रहे हैं, देन माई सजेशन टू यू दैट फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन एंड यू विल सी द बिग चेंजेस इन टू योर लाइफ. The third and biggest reason is that still you are thinking that your workouts and your diet is going to help you out to achieve your fitness, but the key to achieve permanent fitness is your lifestyle. सिंपली तौर पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान के चलिए कि एक व्यक्ति सुबह को जिम जाता है और घर पे आके कुछ नहीं करता है, वहीं पर एक व्यक्ति पूरे दिन भर ऑफिस में रहता है, बढ़िया से काम करता है, पैदल चलता है, घर पे आके टाइम पर सो जाता है, अच्छी क्वालिटी का घर का बना हुआ खाना खाता है, भूखा नहीं रहता है, उस चीज को बोला जाता है एक अच्छी लाइफस्टाइल। सिंपली तौर पे लाइफस्टाइल का मतलब होता है आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे खाते हो, क्या आप नॉर्मल वर्कआउट्स करते हो, आप अपने ऑफिस में पैदल चलते हो या कुर्सी पे ही बैठे रहते हो, अगर आप हाउस वाइफ हो तो तब भी क्या आप घर पे ही रहते हो या पैदल चलते हो, आप कितना पैदल चलते हो। सिंपली तौर पे यू नीड टू एनालाइज दिस थिंग। जितने भी लोगों को मैंने मोटा देखा है या जो मुझसे ये शिकायत करते हैं कि उनका वेट कम नहीं होता है, ऑन एन एवरेज बेसिस मुझे इतना पता होता है कि सुबह 10 से लेके और शाम को 6 बजे तक उनके 3000 स्टेप्स तक नहीं हुए होते हैं, और फिर वो उसके बाद में शाम को बाहर निकलते हैं और अपने स्टेप को पूरा करते हैं। सिंपली तौर पे अगर 10,000 स्टेप्स आपकी लाइफ के अंदर हैं तो वो बहुत अच्छा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही बार में 10,000 स्टेप्स करने हैं। पूरे दिन भर के अंदर 1500 स्टेप्स आपके हो तो आपकी फिटनेस आपके हाथ में होगी। और सिंपली तौर पे सिर्फ आपको अपने ऑफिस को आपको अपना खेल का मैदान बनाना है, आपको पैदल चलना है, बातें करनी है, काम करना है, इधर से उधर भटकना है। सिंपली तौर पे यू गोना सी दैट ऑटोमेटिकली योर लाइफस्टाइल इज बिकमिंग एक्टिव। सिंपली तौर पे आई स्टिल रिमेंबर दैट व्हेन आई यूज्ड टू बिलीव, आई यूज्ड टू गो टू सो मैनी जिम्स, आई यूज्ड टू गो सो मैनी डाइटिशियन, बट आई वाज नॉट एबल टू अचीव माय फिटनेस. But since I have worked on my lifestyle, my nutrition, and I have worked on the other things of my life, then definitely I am seeing the big changes into my life. सिंपली तौर पे मेरा सबसे बड़ा गेम चेंजर मेरा लाइफस्टाइल ही रहा है, क्योंकि जब मैं ऑफिस में काम करता था तब भी अपने ऑफिस को ख़त्म होने के बाद में मैं गार्डन में वॉक करके आता था अपने घर पर आने की जगह। मेरे सोने के टाइम को मैंने फिक्स किया, खाने के टाइम को मैंने फिक्स किया, मील स्किप करना बंद किया मैंने, अपनी सोच के ऊपर मैंने काम किया, खाने के साथ में अपने रिलेशनशिप को बदला मैंने, एंड सिंपली थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग फॉर मी. करंटली आई एम 38 years old, but I am very much fit into as compared to the people who are into my age.
Friends, if I'm connecting with you any of this, then feel free to comment on this. I would love to give you free instruction whenever I'm gonna read on this video. This is Bhupendra signing out for now, and I know that you all can do it. You all just need to know your fitness. और अगर आप मुझे Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Have a nice day.